हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ 10 ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼, स्पैशली इन्होंने पीपीएससी एग्जाम्स लिए बनाया जा रहा है। दिस इज साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो अगर तुसी चाहते हो कि डेली थोनू नोटिफिकेशन मिले वीडियो दी तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो। अगर वीडियोस अच्छियां लगदियां लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। नाल ही ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗਾਨੀ ਕੱਪ ਓਪਨ 2022। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਚੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ठीक है, सो पूछा गया है कि जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਾਨੀ ਕੱਪ ਓਪਨ 2022 ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਕਿਹਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ। ठीक है, 2 सेकंड ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, then ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ, दैट इज जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗਾਨੀ ਕੱਪ ਓਪਨ 2022 ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰ ਲਲਿਤ ਬਾਬੂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? 73rd। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੇन्नई ਤੋਂ। ਉਹ 73rd ਚੈਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਵਰਗਾਨੀ ਕੱਪ ਓਪਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। इंडियन प्लेयर एमआर ललित बाबू जो है, ठीक है, उन्होंने टॉप किया। ओके, और तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो सैकेंड क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर च पूछा जा चुका है बारे। ये जो क्वेश्चन है वो हैगा रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ठीक है, पूछा गया कि कदों मनाया जाता है। ठीक है, सो पहला तुम इसका आंसर सोचो। सो ये बारे आप बाद कुछ होर इंपॉर्टेंट चीज़ा भी डिस्कस करांगे। सो 2 सेकंड का टाइम है थोड़े लिए। सो देखो की आऊगा इसका आंसर। सो जो क्वेश्चन है आंसर आएगा डी, दैट इज 9 जनवरी। ओके, सो प्रवासी भारतीय दिवस बारे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ा पढ़ते हैं। देखो सब तो पहली गल जो प्रवासी भारतीय दिवस है उन्होंने की बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, दैट इज एनआरआई डे। ते कदों मनाया जाता है? 9 जनवरी ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦਾ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ओके, सो अगर आप गल करिए जो ओवरसी इंडियंस है या जिन्होंने आप एनआरआईज बोलते हैं या परसनस ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, वो किहड़े लोग होंगे हैं? जिहड़े जिन्हां दे या तो एंसैसटर्स का बर्थ इंडिया च होया होवे या उन्हां दा बर्थ इंडिया च होया होवे बट वो रह इंडिया तो बाहर रहे ने। ओके, सो उन्होंने आप बोलते हैं एनआरआईज या परसनस ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो एक होर चीज़ जो फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस है उन्होंने 9 जनवरी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ। याद रखियो। ओके, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सो नैक्सट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ पीपीएससी ਦਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਕਰਕੇ 8054070091 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 7889231990 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ mehnatibachcha@gmail.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ। ओके, सो ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਨੀਕਰਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, कादे लई ताकि इलैक्ट्रिसिटी नू बेचा जा सके। सो ऑप्शंस ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। सो 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी सोचो इसका आंसर क्या होगा, देन अपन डिस्कस करते हैं। सो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज नेपाल। ओके, कुछ होर इंफॉर्मेशन देखते हैं बारे। देखो जो नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड है दैट इज NPEL, उन्होंने एनर्जी ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के मणिकरण पावर लिमिटेड दे नाल ताकि इलैक्ट्रिसिटी नू बेचा जा सके। ठीक है, जो कि डोमैस्टिक प्राइवेट सैक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है। ये ऐसा फर्स्ट एग्रीमेंट है जो कि प्राइवेट सैक्टर्स दे विच हो रहा है, मतलब इंडिया का किसी होर कंट्री दे नाल टू फैसिलिटेट पावर ट्रेडिंग, किसी होर कंट्री दे नाल मतलब नेपाल दे नाल। ओके, जिहड़ा एग्रीमेंट है साइन किया गया ड्यूरिंग नेपाल पावर मार्केट समिट 2022 जिहड़ी कित्थे हुई काठमंडू दे विच नेपाल दे। ओके, जिहड़ा एग्रीमेंट है इहदे नाल जिहड़ा नेपाल है वो बेच सकूगा 500 मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी इंडिया नू इनिशियल फेज दे विच। ओके, सो मेन जिहड़ी चीज है यही है कि किन्ना किता मणिकरण पावर लिमिटेड ने नेपाल दे नाल। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं हुण आपां। सो जिहड़ा ये क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर च इहदे बारे पूछा गया है। यह हैगा रिगार्डिंग खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, सो इहदे विच पूछा गया कि केड़ी स्टेट है जिहड़ी कि होस्ट करूगी खेलो इंडिया गेम्स 2023 दे विच। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। सो 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी सोचो इसका आंसर की आएगा। सो जिहड़ा इसका आंसर है वो आएगा डी, दैट इज कर्नाटका। ओके, सो ये बारे कुछ होर डिटेल्स देखते हैं। देखो जिहड़े कर्नाटका के मिनिस्टर है यूथ इंपावरमेंट ते स्पोर्ट्स के KC नारायण गोवड़ा, उन्होंने अनाउंस किया कि कर्नाटका जिहड़ा होस्ट करूगा नैक्सट खेलो इंडिया गेम्स 2023 दे विच। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखियो। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को नैक्सट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, कि रीसेंटली एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है जिहड़ी वो दित्ती गई है ताकि न्यूक्लियर वैपन्स का जिहड़ा यूज है वो घट तो घट होवे। ते जिहड़ी ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज दे विच साइन की गई है। सो पूछा गया है कि जिहड़ियां कंट्रीज दित्तियां होईयां ने इन्हां विचों किहड़ी कंट्री सिग्नेटरी नहीं हैगी। सो ऑप्शंस है UK, चाइना, रशिया और इंडिया। 2 सेकंड का टाइम है, सोचो, देन आपां डिस्कस करांगे। सो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज इंडिया। देखो एक चीज मैं तुहानूं दसना चाहनी है क्वेश्चन दे विच वो की है कि जिहड़ियां मोस्ट 5 पावरफुल नेशंस हैं जिन्हां ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है वो नेशंस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केड़ी कंट्रीज है वो, देखो चाइना, फ्रांस, रशिया, UK ते US। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्हां ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिता है कि जिहड़े न्यूक्लियर पावर दी यूजेज है वो देख के की जाऊगी। ठीक है, अगर तुम ये 5 कंट्रीज नूं ध्यान नाल देखोगे तो ये जिहड़ी कंट्रीज है ये किहड़ी कंट्रीज ने जिहड़ियां कि परमानेंट मैंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दियां। ये चीज भी याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 5 कंट्रीज नूं N5 या फिर P5 भी बोलते हैं। ठीक है, जिहड़ी 5 कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया उहदे विच की क्या होया है कि अगर कोई भी कंट्री च आपस च थोड़ी बहुत लड़ाई हुंदी है तो वो लड़ाई इन्नी ना वध जाए कि न्यूक्लियर वॉर दे विच कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली इन्हां दा मेन मकसद है न्यूक्लियर वॉर होने तो बचाना। ओके, हुण देखो जिहड़ी सारी गल है न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बोलते हैं, इन्हां नूं क्यों बोलते हैं, इहदे पीछे एक ट्रीटी है, वो ट्रीटी बारे देखते हैं हुण आपां। देखो और ट्रीटी हैगी है कॉमनली ਉਹਨੂੰ NPT ट्रीटी बोलते हैं या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, जिहड़ी NPT है वो एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जिहदा मेन ऑब्जेक्टिव की है बचाना की तो न्यूक्लियर वेपन से स्प्रेड तो बचाना। मतलब भी ऐ ना होवे कि दुनिया च सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन आ जान। हुण कुछ कंट्रीज तो अच्छी कंट्रीज ने कि वो न्यूक्लियर वेपन का एवं यूज नहीं करनगे, बट कुछ ऐसिया कंट्रीज भी ने जिहड़ियां बिना सोचे समझे अगर उन्होंने बदला लेना तो आराम नाल न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लैणगियां विदाउट सोचे कि इहदा की असर हो सकता है। सो ऐसी कंट्रीज के हथ च न्यूक्लियर वेपन आने तो बचाना। ओके, उस तो बाद जिहड़ी इहदे नाल रिलेटेड टैक्नोलॉजी है ओहदी स्प्रेड होने तो बचाना ते प्रमोट करना कोऑपरेशन कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा रहा है तो पीसफुल मैनर च यूज किया जाए। हुण अगर आपां गल करिए यूरेनियम है,
यूरेनियम वैसे एक रेडियो एक्टिव एलीमेंट है, ठीक है, अगर आप वैसे हो देखिए तो बहुत खतरनाक है, बट यूरेनियम का यूज किया जाता है इलैक्ट्रिसिटी ਨੂੰ प्रोड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। सो ये मतलब है कि ਉਹਦਾ यूज करना किसी अच्छे काम ਦੇ ਲਈ, पीसफुल यूज करना, ना कि किसी देश ਨੂੰ खत्म ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ करना। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਅਟੈਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦਾ यूज ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्ट्रॉय ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो काफी ज्यादा गलत हुई सी चीज, ठीक है। सो यही मतलब एनपीटी का कि ऐसी चीज ਨੂੰ बचाना होने तो। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। ਕਿਹੜੀ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P5N5 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? यूके, USA, फ्रांस, रशिया ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखियो ते ईयर भी याद रखियो कि ट्रीटी ਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनपीसीआई। एनपीसीआई ने ना कुछ लिमिटेशन दी है कैश विड्रॉल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਪੀਸੀਆਈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ओके, सो देखो ये पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि एनपीसीआई ने लिमिट लगाई है कैश विड्रॉल के उपर ते मिनी स्टेटमेंट्स के उपर, ठीक है, जिन्होंने कि एक्वायरिंग बैंक्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाऊगा 15 जनवरी 2022 तक। ओके, सैकेंड स्टेटमेंट क्या होया है कि उन्होंने कहा है कि मैक्सीमम एक दिन दे विच हर कस्टमर है जिहड़ा वो 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन कर सकता है, मतलब 5 बार कैश कट सकता है वो, ठीक है। थर्ड की है कि जी कैश विड्रॉल लिमिट दी गई है माइक्रो एटीएम्स तो वो कितनी दी हुई है 10,000 पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो तुसी दसना भी इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ऑल ए बी सी। सो 2 सेकंड का टाइम है, सोचो, दैन आपां इहनूं डिस्कस करांगे। ओके, सो जिहड़ा क्वेश्चन है इहदा आंसर आऊगा डी, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, हुण इहनूं डिस्कस करदे। देखो जिहड़ा एनपीसीआई है, इहदी फुल फॉर्म मैं तुहानूं दस्सी सी, नैशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हां ने लिमिट्स लगाई है कि कितना कैश आपां विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ते सैकेंड जिहड़ी मिनी स्टेटमेंट्स ने जिन्हां नूं इंप्लीमेंट किया जाऊगा बैंक्स के द्वारा, किहड़े बैंक्स? एक्वायरिंग बैंक्स के द्वारा। हुण एक्वायरिंग बैंक्स किहड़े हुंदे ने? एक्वायरिंग बैंक्स जिहड़े ने वो बैंक्स नूं बोलदे आ जिहड़े कि परफॉर्म करते हैं कार्ड प्रोसैसिंग का फंक्शन, ठीक है। जिहड़े ए बैंक्स ने ये एक्सैप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इशूइंग बैंक्स तो। इशूइंग बैंक्स किहड़े हुंदे हैं? जिहड़े कि क्रेडिट कार्ड्स नूं इशू करते हैं, ठीक है। मतलब जिन्ने भी प्रोसैस है क्रेडिट कार्ड जो इशू हो जाता है उस तो बाद जिन्ने भी प्रोसैस है वो सारे एक्वायरिंग बैंक्स करते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट दिता है कि मैक्सीमम 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस हो सकदियां ने पर कस्टमर के द्वारा एक दिन दे विच। थर्ड की है कि जी कैश विड्रॉल लिमिट है माइक्रो एटीएम्स तो उन्होंने कितना किया गया 10,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो सारिया स्टेटमेंट्स ट्रू है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेन गल की है कि जी एक लिमिट है कि किन्नी कैश तुसी विड्रॉ कर सकते हो एक टाइम तो किन्ना 10,000 रुपीज ते किन्नी बार तुसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो एक दिन दे विच 5 बार, ठीक है। मेन यही दिता होया दे विच। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं हुण। सो जिहड़ा ये वाला क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के बारे है, रिपोर्ट का नाम है IHS मार्केट लिमिटेड रिपोर्ट, ठीक है। ये की कहा गया है कि बाय 2030 लार्जेस्ट इकोनॉमी केड़ी बन जूगी ते जेड़ी जापान नूं भी पिछे छड़ दूगी। सो तुहाडे कोल 4 ऑप्शंस हैं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया या साउथ कोरिया। सो 2 सेकंड का टाइम है, सोचो की आंसर आऊगा, दैन डिस्कस करते हैं आपां। सो इसदा आंसर आएगा सी, दैट इज इंडिया। ओके, सो IHS मार्केट लिमिटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेड़ी इंडिया है
ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬਾय 2030। ठीक है, अगर आप ਹੁਣ देखिए एट प्रेजेंट ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ 6th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ यूके। ओके, अगर आप देखिए ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ जीडीपी है ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ यूएस डॉलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स आ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ टू कितना होगा 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स आ बाय 2030। सो इस वजह तो ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ठीक है, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ AIIB ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, ਅਜੇ ਸੇਠ, ਨਜ਼ੀਰ ਕਬੀਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ। ਸੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ओके, सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ A दैट इज उर्जित पटेल। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਕੌਣ ਹੈ? आरबीआई ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ आरबीआई ਦੇ। ओके, सो ਜਿਹੜੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ? 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ। ओके, देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ओके, अगर आप बैंक की गल करिए तो यह मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन एम की है सोशल ते इकनॉमिक आउटकम्स लेके आना एशिया दे विच ते उन्हां नूं इंप्रूव करना। ओके, सो ये चीज याद रखियो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਪਨ ਡੈਫਿਕੇਸ਼ਨ फ्री प्लस विलेज लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम ਦੇ अंडर। ठीक है, सो ऑप्शंस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका। सो थोड़े को 2 सेकंड का टाइम है, सोचो देन आप डिस्कस करांगे। ओके, सो ਇਹਦਾ आंसर आएगा B दैट इज तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना है उन्हें टॉप किया ये लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਜਿਹੜੀ तेलंगाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप जिन्ने भी विलेजेस हैं ਉਹਨਾਂ ਵੀ तेलंगाना ਦੇ हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस हैं ਜਿਹੜੇ कि ओपन डेफिकेशन फ्री ने। ठीक है, सो इस करके तेलंगाना ने टॉप किया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, अगर आप गल करिए 13,737 विलेजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब टोटल उत्थे 14,200 विलेजेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13,737 विलेजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुके ने। ओके, अगर आप गल करिए तेलंगाना तो बाद होर किहड़ी स्टेट आंदी है? सो तेलंगाना तो बाद आंदा है तमिलनाडु। ठीक है, सो ये चीज याद रखियो। ओके, उस तो बाद 3rd नंबर ते अपने कोल कर्नाटका। ठीक है जी, इन्ना वैसे पुछदे नहीं है पेपर च। तेलंगाना तो बाद तमिलनाडु का याद रखियो, बस इन्ना इनफ है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हैगा एक रिगार्डिंग टैलीकॉम कंपनी। सो पूछा गया जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टैलीकॉम कंपनी ਕਿਹੜੀ बन गई जिन्हों ने लॉन्च किया है UPI ऑटो पे फैसिलिटी बोथ प्रीपेड ते पोस्टपेड सबसक्राइबर्स ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? NPCI ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो 4 ऑप्शंस ने MTNL, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल। सो 2 सेकंड का टाइम है, सोचो ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा देन आप डिस्कस करते हैं। ओके, सो ਇਹਦਾ आंसर है B दैट इज रिलायंस जियो। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਦੇ हैं। सो देखो ਜਿਹੜਾ NPCI है दैट इज नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਿਲਾयंस जियो ने मिलके एक कोलैबोरेशन की है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे।
ठीक है, मतलब कि रिलायंस से ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਸਟਪੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਹੁਣ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ठीक है, सो तो रिलायंस जियो एक फैसिलिटी देने वाली फर्स्ट ऐसी टैलीकॉम कंपनी बन गई है। तो उन्होंने किन्नल मिलके ये चीज़ ਨੂੰ स्टार्ट किया है एनपीसीआई ਦੇ ਨਾਲ। ओके, सो ये सारे फैक्ट्स याद रखियो। सो ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच।